हमारे मुख्य अतिथि आज की मन की बात की 100वीं संस्करण के मुख्य अतिथि असम के राज्यपाल महामहिम गुलाब चंद जी कटारिया जी पधारे हैं। हम उनका भव्य स्वागत करते हैं। असम राजभवन के दरबार हॉल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात की 100वीं संस्करण के उपलक्ष्य में प्रचार भारत की तरफ से यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन। आज मन की बात का 100वां संस्करण के मुख्य अतिथि असम के राज्यपाल महामहिम गुलाब चंद जी कटारिया जी का हम स्वागत करते हैं और सभी यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अतिथिगण में मन की बात की उपस्थिति में हार्दिक अभिनंदन। मैं डायरेक्टर जनरल नॉर्थ ईस्ट जोन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के बी नारायण जी से निवेदन करता हूं कि वो आज के समारोह के मुख्य अतिथि असम के राज्यपाल महामहिम गुलाब चंद जी कटारिया जी का परंपरागत स्वागत करें। अब मैं डायरेक्टर जनरल नॉर्थ ईस्ट जोन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के बी नारायण जी को अपना व्यक्तित्व रखने के लिए आदरपूर्वक आमंत्रण करता हूँ। Honorable Governor of Assam, Shri Gulab Chand Kataria ji, Deputy Speaker Dr. Numal Momin, Padma awardees, distinguished ladies and gentlemen, my friends from the media, good morning. I feel deeply grateful that the Honorable Governor has so graciously accepted our invitation and is the chief guest at this function. Thank you from all of us, sir. Man Ki Baat, the unique experiment of bonding a country together, of building a movement for positivity, for behavior change, has brought us together today and does not need any introduction from me. However, just minutes away from the 100th episode of the program, I would like to take this opportunity of recounting some of the amazing statistics from an IIM survey conducted recently. Overall, 96% of the population is aware of Man Ki Baat, and at least 100 crore people have listened to one of the episodes of the program. 23 crore people tune in regularly to the program, while another 41 crore listen occasionally. Although it's essentially a radio address, over 44% of the audience watches it on TV and another 37% access it through a mobile device. Hindi listeners amount to 65%, while English comes in second place at 18%. And lastly, but importantly, 73% of the regular listeners have reported increased positivity about the country's future after listening to the program, while 59% have reported increased trust in the government. Our region has been the favorite topic of the Prime Minister in his talks. Time and again, he has focused on the efforts of individuals from the Northeast in bringing about societal change. Some of them are here in this hall, honoring all of us by their very presence. I'd like to conclude these opening remarks by thanking the Honorable Governor and the Raj Bhavan for so kindly lending us this Darbar Hall and other facilities. I also thank all of you for being here today on this memorable occasion. Let me not keep you from the historic occasion of the 100th episode of Man Ki Baat. Thank you. अब हम उस ओर अग्रसर हो रहे हैं जिसके लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। किसी भी सफ़र की शुरुआत पहले एक कदम से होती है और जब एक
100 बन जाता है तो उसकी एक अलग कहानी होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात की आज 100वीं कड़ी के अवसर पर हर एक भारतीय को गर्व है। जो सफ़र 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था, आज एक लंबी यात्रा कर चुका है और जिसमें भारत के विभिन्न राज्य और अलग अलग क्षेत्रों से अपनी प्रतिभा और काबिलियत का परिचय दिया है। भारत की प्रगति में अहम भूमिका निभाई है। आइए एक बार फिर से हम सब मिलकर मोदी जी के मन की 100वीं कड़ी को सीधे प्रसारण से जोड़ते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं, हमारे देशवासी हैं। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। साथियों, 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात। मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी, तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। साथियों, मन की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है। मेरे एक मार्गदर्शक थे, श्री लक्ष्मण राव जी इनामदार। हम उनको वकील साहब कहा करते थे। वो हमेशा कहते थे कि हमें दूसरों के गुणों की पूजा करनी चाहिए। सामने कोई भी हो, आपके साथ का हो, आपका विरोधी हो, हमें उसके अच्छे गुणों को जानने का, उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। उनकी इस बात ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है। मन की बात दूसरों के गुणों से सीखने का
बहुत बड़ा माध्यम बन गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस कार्यक्रम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया। मुझे याद है, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तो वहां सामान्य जन से मिलना जुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था। मुख्यमंत्री का कामकाज और कार्यकाल ऐसा ही होता है, मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते रहते हैं। लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहां का जीवन तो बहुत ही अलग है। काम का स्वरूप अलग, दायित्व अलग, स्थितियां परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामझाम, समय की सीमा। शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था, खाली खाली सा महसूस करता था। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया, सामान्य मानवी से जुड़ने का रास्ता दिया। पदभार और प्रोटोकॉल व्यवस्था तक ही सीमित रहा और जनभाव कोटि कोटि जनों के साथ मेरे भाव विश्व का अटूट अंग बन गया। हर महीने मैं देश के लोगों के हजारों संदेशों को पढ़ता हूं। हर महीने में देशवासियों के एक से एक अद्भुत स्वरूप के दर्शन करता हूं। मैं देशवासियों के तप त्याग की पराकाष्ठा को देखता हूं, महसूस करता हूं। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं आपसे थोड़ा भी दूर हूं। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। मन की बात स्व से समष्टि की यात्रा है। मन की बात अहम से वयम की यात्रा है। यह तो मैं नहीं तू ही इसकी संस्कार साधना है। आप कल्पना करिए, मेरा कोई देशवासी 40-40 साल से निर्जन पहाड़ी और बंजर जमीन पर पेड़ लगा रहा है। कितने ही लोग 30-30 साल से जल संरक्षण के लिए बावड़ियां और तालाब बना रहे हैं, उसकी साफ सफाई कर रहे हैं। कोई 25-30 साल से निर्धन बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई गरीबों की इलाज में मदद कर रहा है। कितनी ही बार मन की बात में इनका जिक्र करते हुए मैं भावुक हो गया हूं। आकाशवाणी के साथियों को कितनी ही बार इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है। आज पिछला कितना ही कुछ आंखों के सामने आए जा रहा है। देशवासियों के इन प्रयासों ने मुझे लगातार खुद को खपाने की प्रेरणा दी है। साथियों, मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं, वे सब हमारे हीरोज हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। आज जब हम 100वें एपिसोड के पड़ाव पर पहुंचे हैं, तो मेरी ये भी इच्छा है कि हम एक बार फिर इन सारे हीरोज के पास जाकर उनकी यात्रा के बारे में जानें। आज हम कुछ साथियों से बात भी करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा के भाई सुनील जगलान जी। सुनील जगलान जी का मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि हरियाणा में जेंडर रेशियो पर काफी चर्चा होती थी।
और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था। और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते सेल्फी विथ डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया। और इसमें मुद्दा सेल्फी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसमें डॉटर को, बेटी को प्रमुखता दी गई थी। जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है, इस अभियान से यह भी प्रकट हुआ। ऐसे ही अनेकों प्रयासों का परिणाम है कि आज हरियाणा में जेंडर रेशियो में सुधार आया है। आइए आज सुनील जी से ही कुछ गप मार लेते हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर। मेरी खुशी बहुत बढ़ गई है सर आपकी आवाज सुनकर। सुनील जी, सेल्फी विद डॉटर हर किसी को याद है। अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी, ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाणा से पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है, तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। सुनील जी, अब आपकी बिटिया कैसी है, आजकल क्या कर रही है? जी, मेरी बेटियां नंदनी और याचिका है। एक 7th क्लास में पढ़ रही है, एक 4th क्लास में पढ़ रही है और आपकी बड़ी प्रशंसक हैं। उन्होंने आपके लिए थैंक यू प्राइम मिनिस्टर करके अपनी क्लासमेट्स जो हैं लेटर भी लिखवाए थे असल में। वाह 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 वाह। अच्छा, बिटिया को आप मेरा और मन की बात के श्रोताओं का खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी वजह से देश की बेटियों के चेहरे पे लगातार मुस्कान बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। जी शुक्रिया। साथियों, मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि मन की बात में हमने देश की नारी शक्ति की सैकड़ों प्रेरणादायी गाथाओं का जिक्र किया है। चाहे हमारी सेना हो या फिर खेल जगत हो, मैंने जब भी महिलाओं की उपलब्धियों पर बात की है उसकी खूब प्रशंसा हुई है। जैसे हमने छत्तीसगढ़ के देउर गांव की महिलाओं की चर्चा की थी। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई के लिए अभियान चलाती हैं। ऐसे ही तमिलनाडु की वो आदिवासी महिलाएं जिन्होंने हजारों इको फ्रेंडली टेराकोटा कप्स निर्यात किए, उनसे भी देश ने खूब प्रेरणा ली। तमिलनाडु में ही 20,000 महिलाओं ने साथ आकर वेल्लोर में नाग नदी को पुनर्जीवित किया था। ऐसे कितने ही अभियानों को हमारी नारी शक्ति ने नेतृत्व दिया है और मन की बात उनके प्रयासों को सामने लाने का मंच बना है। साथियों, अब हमारे साथ फोन लाइन पर एक और सज्जन मौजूद है। इनका नाम है मंजूर अहमद। मन की बात में जम्मू कश्मीर की पेंसिल स्लेट्स के बारे में बताते हुए मंजूर अहमद जी का जिक्र हुआ था। मंजूर जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बड़े अच्छे से है सर। मन की बात के इस 100वें एपिसोड में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। अच्छा, ये पेंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे से चल रहे हैं सर, बहुत अच्छे से। जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर, तब से बहुत काम बढ़ गया सर, और दूसरों को भी रोजगार यहाँ बहुत बड़ा है इस काम में। कितने लोगों को अब रोजगार मिलता होगा? अभी मेरे पास 200 प्लस है। अरे वाह। मुझे बहुत खुशी हुई। जी सर, जी सर। अभी 1-2 महीने में अभी मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ कि और 200 लोगों को रोजगार बढ़ जाएगा सर। वाह वाह वाह। देखिए मंजूर जी, जी सर। मुझे बराबर याद है, और उस दिन आपने मुझे कहा था कि ये एक ऐसा काम है जिसकी न कोई पहचान है, न स्वयं की पहचान है, और आपको बड़ी पीड़ा भी थी, और इस वजह से आपको काफी बड़ी मुश्किलें होती थी, वो भी आप कह रहे थे। लेकिन अब तो पहचान भी बन गई और 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जी सर, जी सर। और नया एक्सपांशन करके और 200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं।
ये तो बहुत खुशी की खबर दी आपने। एवं सर यहाँ पे जो फार्मर है सर उनका भी बहुत बड़ा इसमें फायदा मिला सर तब से। हाँ हाँ। 2000 का ट्री बेचते थे, अभी वही ट्री 5000 तक पहुंच गया सर। इतनी डिमांड बढ़ गई सर इसमें तब से, और अपनी पहचान भी बन गई। इसमें बहुत से आर्डर है अपने पास सर। अभी मैं आगे 1-2 महीने में और एक्सपेंड करके और 200-250 2-4 गांव में जितने भी लड़के लड़की हैं इसमें एडजस्ट हो सकता है, उनका भी रोजी रोटी चल सकता है सर। देखिए मंजूर जी, वोकल फॉर लोकल की ताकत कितनी जबरदस्त है, आपने धरती पर उतार के दिखा दिया है। जी सर, जी सर। मेरी तरफ से आपको और गांव के सभी किसानों को और आपके साथ काम कर रहे हैं सभी साथियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। धन्यवाद सर। साथियों, हमारे देश में ऐसे कितने ही प्रतिभाशाली लोग हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते ही सफलता के शिखर तक पहुंचे हैं। मुझे याद है विशाखापट्टनम के वेंकट मुरली प्रसाद जी ने एक आत्मनिर्भर भारत चार्ट शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करेंगे। जब बेतिया के प्रमोद जी ने एलईडी बल्ब बनाने की छोटी यूनिट लगाई, या गढ़ मुक्तेश्वर के संतोष जी ने मैट्स बनाने का काम किया, मन की बात ही उनके उत्पादों को सबके सामने लाने का माध्यम बना। हमने मेक इन इंडिया के अनेक उदाहरणों से लेकर स्पेस स्टार्टअप्स तक की चर्चा मन की बात में की है। साथियों, आपको याद होगा कुछ एपिसोड पहले मैंने मणिपुर की बहन विजय शांति देवी जी का भी जिक्र किया था। विजय शांति जी कमल के रेशों से कपड़े बनाती हैं। मन की बात में उनके इस अनोखे इको फ्रेंडली आइडिया की बात हुई तो उनका काम और पॉपुलर हो गया। आज विजय शांति जी फोन पर हमारे साथ हैं। नमस्ते विजय शांति जी, हाउ आर यू? Sir, I am fine. एंड हाउ इज योर वर्क गोइंग ऑन? Sir, still working along with my 30 women. In such a short period you have reached 30% team. Yes, sir. This year also more expand with 100 women in my area. So your target is 100 women. Yeah, 100 women. And now people are familiar with this lotus stem fiber. Yes, sir. Everyone know from Man Ki Baat program all over India. So now it's very popular. Yes, sir. From Prime Minister Man Ki Baat program, everyone knows about the lotus fiber. So now you got the market also. Yes, sir. I have got a market from USA also. They want to buy in bulk in large quantities, but I want to give from this year to send the US also. So now you are exporter. Yes, sir. From this year, I export our product made in India, lotus fiber. So when I say vocal for local and now local for global. Yes, sir. I want to reach my product all over the globe of world. So congratulations and wish you best luck. Thank you, sir. Thank you. Thank you विजय शांति। Thank you, sir. साथियों, मन की बात की एक और विशेषता रही है। मन की बात के जरिए कितने ही जन आंदोलन ने जन्म भी लिया है और गति भी पकड़ी है। जैसे हमारे खिलौने, हमारी टॉय इंडस्ट्री को फिर से स्थापित करने का मिशन मन की बात से ही तो शुरू हुआ था। भारतीय नस्ल के श्वान, हमारे देशी डॉग्स, उसको लेकर जागरूकता बढ़ाने की शुरुआत भी तो मन की बात से ही की थी। हमने एक और मुहिम शुरू की थी कि हम गरीब छोटे दुकानदारों से मोलभाव नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। जब हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हुई तब भी मन की बात ने देशवासियों को इस संकल्प से जोड़ने में खूब भूमिका निभाई। ऐसे हर उदाहरण समाज में बदलाव का कारण बने हैं। समाज को प्रेरित करने का ऐसे ही बीड़ा प्रदीप सांगवान जी ने भी उठा रखा है। मन की बात में हमने प्रदीप सांगवान जी की हीलिंग हिमालयज अभियान की चर्चा की थी।
वो फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। प्रदीप जी नमस्कार। सर जय हिंद। जय हिंद भैया। कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, आपकी आवाज सुन के और भी अच्छी। आपने हिमालय को हील करने को सोची, हाँ जी सर। अभियान भी चलाया। आजकल आपका कैंपेन कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है। 2020 से ऐसा मानिए कि जितना काम हम 5 साल में करते थे, अब वो 1 साल में ही हो जाता है। अरे वाह। हाँ जी सर। शुरुआत बहुत नर्वस हुई थी, बहुत डर था इस बात को लेके कि जिंदगी भर ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर थोड़ा सपोर्ट मिला और 2020 तक हम बहुत स्ट्रगल भी कर रहे थे। ऑनेस्टली लोग बहुत कम जुड़ रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, हमारी मुहिम को इतना तवज्जो भी नहीं दे रहे थे। बट 2020 के बाद जब मन की बात में जिक्र हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। मतलब पहले हम साल में 6-7 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे, 10 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे। आज की डेट में हम डेली बेसिस पे 5 टन कचरा इकट्ठा करते हैं अलग अलग लोकेशन से। अरे वाह। मन की बात में जिक्र होने के बाद आप सर बिलीव करें मेरी बात को कि मैं ऑलमोस्ट गिव अप करने की स्टेज पे था एक टाइम पे, और उसके बाद फिर बहुत सारा बदलाव आया मेरे जीवन में और चीजें इतनी स्पीड अप हो गई कि जो चीजें हमने सोची नहीं थी। सो आई एम रियली थैंकफुल कि पता नहीं कैसे हमारे जैसे लोगों को आप ढूंढ लेते हैं, कौन इतनी दूर दराज एरिया में काम करता है, हिमालय के क्षेत्र में जाके बैठ के हम काम कर रहे हैं, सॉल्टिट्यूड पे काम कर रहे हैं, वहां पे आपने ढूंढा हमें, हमारे काम को दुनिया के सामने लेके आए। तो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था तब भी और आज भी कि मैं हमारे देश के जो प्रथम सेवक हैं उनसे मैं बातचीत कर पा रहा हूँ। मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। प्रदीप जी, आप तो हिमालय के चोटियों पर सच्चे अर्थ में साधना कर रहे हैं और मुझे पक्का विश्वास है अब आपका नाम सुनते ही लोगों को याद आ जाता है कि आप कैसे पहाड़ों की स्वच्छता अभियान में जुड़े हैं। हाँ जी सर। और जैसा आपने बताया कि अब तो बहुत बड़ी टीम बनती जा रही है और आप इतनी बड़ी मात्रा में डेली काम कर रहे हैं। हाँ जी सर। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इन प्रयासों से, उसकी चर्चा से अब तो कितने ही पर्वतारोही स्वच्छता से जुड़े फोटो पोस्ट करने लगे हैं। हाँ जी सर, बहुत। ये अच्छी बात है। आप जैसे साथियों के प्रयास के कारण वेस्ट इज ऑल्सो ए वेल्थ, ये लोगों के दिमाग में अब स्थिर हो रहा है और पर्यावरण की भी रक्षा हो रही है और हिमालय का जो हमारा गर्व है उसको संभालना, संवारना वो सामान्य मानवी जुड़ रहा है। प्रदीप जी बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद। साथियों, आज देश में टूरिज्म बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हमारे ये प्राकृतिक संसाधन हो, नदियां, पहाड़, तालाब या फिर हमारे तीर्थ स्थल हो, उन्हें साफ रखना बहुत जरूरी है। ये टूरिज्म इंडस्ट्री की बहुत मदद करेगा। पर्यटन में स्वच्छता के साथ साथ हमने इनक्रेडिबल इंडिया मूवमेंट की भी कई बार चर्चा की है। इस मूवमेंट से लोगों को पहली बार ऐसे कितनी जगहों के बारे में पता चला जो उनके आसपास ही थे। मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमें विदेशों में टूरिज्म पर जाने से पहले हमारे देश के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए और यह डेस्टिनेशन जिस राज्य में आप रहते हैं वहां के नहीं होने चाहिए, आपके राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य के होने चाहिए। ऐसे ही हमने स्वच्छ सियाचिन, सिंगल यूज प्लास्टिक और ई वेस्ट जैसे गंभीर विषयों पर भी लगातार बात की है। आज पूरी दुनिया पर्यावरण के जिस इशू को लेकर इतना परेशान है, उसके समाधान में मन की बात का ये प्रयास बहुत अहम है। साथियों, मन की बात को लेकर मुझे इस बार एक और खास संदेश यूनेस्को की डीजी ऑद्रे ऑजुले का आया है। उन्होंने सभी देशवासियों को 100 एपिसोड की इस शानदार जर्नी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे हैं। आइए पहले यूनेस्को की डीजी के मन की बात सुनते हैं। Namaste, Excellency, dear Prime Minister. On behalf of UNESCO, I thank you for this opportunity to be part of the 100th episode of the Man Ki Baat radio broadcast. UNESCO and India have a long common history. We have very strong partnerships together in all areas of our mandate: education, science, culture, and information.
And I would like to take this opportunity today to talk about the importance of education. UNESCO is working with its member states to ensure that everyone in the world has access to quality education by 2030. With the largest population in the world, could you please explain the Indian way to achieving this objective? UNESCO also works to support culture and protect heritage, and India is chairing the G20 this year. World leaders will be coming to Delhi for this event. Excellency, how does India want to put culture and education at the top of the international agenda? I once again thank you for this opportunity and convey my very best wishes through you to the people of India. À bientôt. Merci beaucoup. Thank you, Excellency. I am happy to interact with you in the 100th Mann Ki Baat program. I am also happy that you have raised the important issues of education and culture. साथियों, यूनेस्को की डीजी ने एजुकेशन और कल्चरल प्रिजर्वेशन यानी शिक्षा और संस्कृति संरक्षण को लेकर भारत के प्रयासों के बारे में जानना चाहा है। ये दोनों ही विषय मन की बात के पसंदीदा विषय रहे हैं। बात शिक्षा की हो या संस्कृति की, उसके संरक्षण की बात हो या संवर्धन की, भारत की यह प्राचीन परंपरा रही है। इस दिशा में आज देश जो काम कर रहा है वो वाकई बहुत सराहनीय है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का विकल्प हो, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो, आपके ऐसे अनेक प्रयास देखने को मिलेंगे। वर्षों पहले गुजरात में बेहतर शिक्षा देने और ड्रॉप आउट रेट्स को कम करने के लिए गुणोत्सव और शाला प्रवेश उत्सव जैसे कार्यक्रम जन भागीदारी की एक अद्भुत मिसाल बन गए थे। मन की बात में हमने ऐसे कितने ही लोगों के प्रयासों को हाईलाइट किया है जो निस्वार्थ भाव से शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आपको याद होगा, एक बार हमने ओडिशा में ठेले पर चाय बेचने वाले स्वर्गीय डी प्रकाश राव जी के बारे में चर्चा की थी, जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के मिशन में लगे हुए थे। झारखंड के गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी चलाने वाले संजय कश्यप जी हो, कोविड के दौरान ई लर्निंग के जरिए कई बच्चों की मदद करने वाली हेमलता एनके जी हो, ऐसे अनेक शिक्षकों के उदाहरण हमने मन की बात में लिए हैं। हमने कल्चरल प्रिजर्वेशन के प्रयासों को भी मन की बात में लगातार जगह दी है। लक्षद्वीप का कुम्मेल ब्रदर्स चैलेंजर्स क्लब हो या कर्नाटका के क्वेमश्री जी कला चेतना जैसे मंच हो, देश के कोने कोने से लोगों ने मुझे चिट्ठी लेकर ऐसे उदाहरण भेजे। हमने उन 3 कॉम्पिटिशन्स को लेकर भी बात की थी जो देशभक्ति पर गीत, लोरी और रंगोली से जुड़े थे। आपको ध्यान होगा, एक बार हमने देश भर के स्टोरी टेलर्स से स्टोरी टेलिंग के माध्यम से शिक्षा की भारतीय विधाओं पर चर्चा की थी। मेरा अटूट विश्वास है कि सामूहिक प्रयास से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इस साल हम जहां आजादी के अमृतकाल में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं G20 की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। यह भी एक वजह है कि एजुकेशन के साथ साथ डाइवर्स ग्लोबल कल्चर्स को समृद्ध करने के लिए हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे उपनिषदों का एक मंत्र सदियों से हमारे मानस को प्रेरणा देता आया है, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। आज हम इसी चरैवेति चरैवेति की भावना के साथ मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा कर रहे हैं। भारत के सामाजिक ताने बाने को मजबूती देने में मन की बात किसी भी माला के धागे की तरह है जो हर मनके को जोड़े रखता है। हर एपिसोड में देशवासियों के सेवा और सामर्थ्य ने दूसरों को प्रेरणा दी है। इस कार्यक्रम में
हर देशवासी दूसरे देशवासी की प्रेरणा बनता है। एक तरह से मन की बात का हर एपिसोड अगले एपिसोड के लिए जमीन तैयार करता है। मन की बात हमेशा सद्भावना, सेवा भावना और कर्तव्य भावना से ही आगे बढ़ा है। आजादी के अमृत काल में यही पॉजिटिविटी देश को आगे ले जाएगी, नई ऊंचाई पर ले जाएगी। और मुझे खुशी है कि मन की बात से जो शुरुआत हुई वो आज देश की नई परंपरा भी बन रही है। एक ऐसी परंपरा जिसमें हमें सबका प्रयास की भावना के दर्शन होते हैं। साथियों, मैं आज आकाशवाणी के साथियों को भी धन्यवाद दूंगा जो बहुत धैर्य के साथ इस पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं। वो ट्रांसलेटर्स जो बहुत ही कम समय में बहुत तेजी के साथ मन की बात का विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करते हैं, मैं उनका भी आभारी हूं। मैं दूरदर्शन के और माय गॉव के साथियों को भी धन्यवाद देता हूं। देश भर के टीवी चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो मन की बात को बिना कॉमर्शियल ब्रेक के दिखाते हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आखिरी में मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा जो मन की बात की कमान संभाले हुए हैं। भारत के लोग, भारत में आस्था रखने वाले लोग, ये सब कुछ आपकी प्रेरणा और ताकत से ही संभव हो पाया है। साथियों, वैसे तो मेरे मन में आज इतना कुछ कहने को है कि समय और शब्द दोनों कम पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सब मेरे भावों को समझेंगे, मेरी भावनाओं को समझेंगे। आपके परिवार के ही एक सदस्य के रूप में मन की बात के सहारे आपके बीच में रहा हूं, आपके बीच में रहूंगा। अगले महीने हम एक बार फिर मिलेंगे, फिर से नए विषयों और नई जानकारियों के साथ देशवासियों की सफलताओं को सेलिब्रेट करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী নমস্কাৰ। আজি মন কি বাতৰ 100 সংখ্যক খণ্ড। আপোনালোকৰ হাজাৰ হাজাৰ চিঠি, লাখ লাখ বাৰ্তা মই লাভ কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি সময়ত যিমান পাৰি সিমান বেছি সংখ্যক চিঠি পত্ৰ তথা বাৰ্তা পঢ়াৰ বাবে মই চেষ্টা কৰিছোঁ। সেইবোৰ বুজাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ চিঠি পত্ৰবোৰ পঢ়োঁতে বহু সময়ত মই আবেগিক হৈ পৰিছোঁ। বিভিন্ন চিন্তাই মোক ভাবুক কৰি তুলিছে। বিভিন্ন চিন্তাৰে ভাৰাক্ৰান্ত হৈও নিজকে চম্ভালি লৈছোঁ। আপোনালোকে মোক মন কি বাতৰ 100 সংখ্যক খণ্ডৰ বাবে অভিনন্দন জনাইছে। কিন্তু মই অন্তৰৰ পৰা ক'ব খুজিছোঁ, দৰাচলতে অভিনন্দনৰ প্ৰকৃত পাত্ৰ আপোনালোক, মন কি বাতৰ শ্ৰোতাসকলেহে, আমাৰ দেশবাসীহে। মন কি বাত কোটি কোটি ভাৰতীয়ৰহে মন কি বাত। তেওঁলোকৰ ভাৱনাৰ প্ৰতীকীকৰণহে। বন্ধুসকল, 2014 চনৰ 3 অক্টোবৰৰ দিনা বিজয়া দশমীৰ পবিত্ৰ পৰ্ব আছিল আৰু আমি সকলোৱে মিলি বিজয়া দশমীৰ সেই দিনটোত মন কি বাতৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিলোঁ। বিজয়া দশমী অৰ্থাৎ অশুভৰ বিপৰীতে শুভ কাৰ্যৰ বিজয়ৰ পৰ্ব। মন কি বাতো দেশবাসীৰ শুভ কাৰ্যৰ ইতিবাচকতাৰ এক অনন্য পৰ্ব হিচাপে পৰিগণিত হৈছে।
এটা এনে পৰ্ব যিটো প্ৰতিটো মাহতে আহে, যাৰ বাবে আমি সকলোৱে অপেক্ষা কৰি থাকোঁ। আমি ইয়াৰ জৰিয়তে ইতিবাচকতাক উদযাপন কৰোঁ। আমি ইয়াত জন অংশীদাৰিত্বকো উদযাপন কৰিছোঁ। বহু সময়ত বিশ্বাসেই নোহোৱাৰ নিচিনা লাগে যে মন কী বাতে ইমানবোৰ মাহ, আনকি ইমানবোৰ বছৰো পাৰ কৰিলে বুলি। প্ৰতিটো খণ্ডই স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে একোটা বিশেষ খণ্ড হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে। প্ৰতিবাৰেই নতুন নিদৰ্শনৰ নতুনত্ব, প্ৰতিবাৰতেই দেশবাসীৰ নতুন সফলতাৰ বিস্তাৰ। মন কী বাতৰ সৈতে সমগ্ৰ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকল জড়িত হৈ পৰিছে। বিভিন্ন বয়স সীমাৰ লোকসকল বিজড়িত হৈছে। বেটি বাচাও বেটি পঢ়াওৰ কথাই হওক, স্বচ্ছ ভাৰত আন্দোলনেই হওক, খাদীৰ প্ৰতি আগ্ৰহৰ কথাই বা প্ৰকৃতিৰ কথাই হওক, স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱেই হওক, নতুবা অমৃত সৰোবৰৰ কথাই হওক, মন কী বাত যিটো প্ৰসংগেৰে জড়িত হৈছে সেইটো বিষয়েই জন আন্দোলনত পৰিণত হৈছে। আৰু আপোনালোকে এয়া সম্ভৱ কৰিছে। মই যেতিয়া আমেৰিকাৰ তদানীন্তন ৰাষ্ট্ৰপতি বাৰাক ওবামাৰ সৈতে একেলগে মন কী বাত কৰিছিলোঁ, তেতিয়া ইয়াৰ বিষয়ে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি চৰ্চা চলিছিল। বন্ধুসকল, মন কী বাত মোৰ বাবেতো আন সকলৰ গুণসমূহৰ পূজা কৰাৰ দৰে। মোৰ এগৰাকী মাৰ্গদৰ্শক আছিল শ্ৰী লক্ষ্মণ ৰাওজী ইমানদাৰ। আমি তেওঁক উকিল চাহাব বুলি মাতিছিলোঁ। তেখেতে সদায় কৈছিল যে আমি আনৰ গুণসমূহৰ পূজা কৰা উচিত। সন্মুখত যিয়েই নাথাকক কিয়, নিজৰ পক্ষৰে হওক কিংবা বিৰোধীয়ে হওক, আমি তেওঁৰ ভাল গুণসমূহ জনাৰ, তেওঁৰ পৰা শিকাৰ প্ৰয়াস কৰা উচিত। তেখেতৰ এইষাৰ কথাই মোক সদায় অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে। মন কী বাত আনৰ গুণসমূহৰ পৰা শিকাৰ বহুত ডাঙৰ মাধ্যম হৈ উঠিছে। মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী, এই কাৰ্যক্ৰমে মোক আপোনালোকৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰি থাকিবলৈ দিয়া নাই। মোৰ মনত আছে, মই যেতিয়া গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলোঁ, তেতিয়া তাত সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ সৈতে স্বাভাৱিক ৰূপতেই মিলা মিছা কৰিছিলোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাম কাজ আৰু কাৰ্যকাল এনেকুৱাই হয়। মানুহৰ সৈতে মিলা মিছা কৰাৰ বহুত সুযোগ পায়েই থকা যায়। কিন্তু 2014 চনত দিল্লীলৈ অহাৰে পৰা মোৰ অনুভৱ হৈছিল যে ইয়াৰ জীৱন দেখোন বহুতেই পৃথক। কামৰ স্বৰূপ পৃথক, দায়িত্ব পৃথক, স্থিতি পৰিস্থিতিসমূহৰ বান্ধোন, সুৰক্ষাৰ জঞ্জাল, সময়ৰ ধৰাবন্ধা। আৰম্ভণিৰ দিনবোৰত বেলেগ ধৰণৰ অনুভৱ কৰিছিলোঁ। উদং উদং যেন লাগিছিল। 50 বছৰৰ আগতে মই মোৰ ঘৰ এইকাৰণেই এৰা নাছিলোঁ যে এদিন মোৰ নিজৰ দেশৰ মানুহখিনিৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰখাটোৱে যেন সমস্যা হৈ পৰিব। যিসকল দেশবাসী মোৰ বাবে সৰ্বোচ্চ, মই তেওঁলোকৰ পৰা আঁতৰি থাকিব দেখোন নোৱাৰিম। মন কী বাতে মোক এই প্ৰত্যাহ্বানৰ বিপৰীতে সমাধান সূত্ৰ প্ৰদান কৰিলে। সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ সৈতে জড়িত হৈ থকাৰ পথ প্ৰদান কৰিলে। দায়িত্বভাৰ আৰু প্ৰটকল ব্যৱস্থাৰ মাজতে সীমিত হৈ থাকিল আৰু জনভাৱ কোটি কোটি জনৰ সৈতে মোৰ ভাৱ বিশ্বৰ অটুট অংগ হৈ পৰিল। প্ৰতি মাহতে দেশৰ জনতাৰ হাজাৰ হাজাৰ বাৰ্তা পঢ়িছোঁ। প্ৰতি মাহতে দেশবাসীৰ এটাৰ পিছত এটা অদ্ভুত স্বৰূপ দৰ্শন কৰিছোঁ। মোৰ এনেই নালাগেই যে মই আপোনালোকৰ পৰা অকণমানো আঁতৰি আছো। মোৰ বাবে মন কী বাত ই এটা কাৰ্যক্ৰমেই নহয়। মোৰ বাবে ই হৈছে এক আস্থা, পূজা, ব্ৰত। যেতিয়া মানুহে ঈশ্বৰৰ পূজা কৰিবলৈ যায়, তেতিয়া প্ৰসাদৰ থাল লৈ যায়। মোৰ বাবে মন কী বাত হৈছে ঈশ্বৰৰূপী জনতা জনাৰ্দনৰ চৰণত প্ৰসাদৰ থালৰ দৰে।
মন কি বাত মোৰ মনৰ আধ্যাত্মিক যাত্ৰা হৈ উঠিছে। মন কি বাত হৈছে নিজৰ পৰা সমূহলৈ যাত্ৰা। মন কি বাত হৈছে মহত্বৰ পৰা অনুশীলনলৈ যাত্ৰা। এয়াতো মই নহয়, তুমিহে হৈছা ইয়াৰ সংস্কাৰ সাধনা। আপোনালোকে ভাবকচোন, মোৰ কোনোবা দেশবাসীয়ে 40 বছৰ ধৰি নিৰ্জন পাহাৰ আৰু চন পৰা মাটিত গছ ৰুই আহিছে। কিমানজন যে লোকে 30 বছৰ ধৰি জল সংৰক্ষণৰ বাবে কুঁৱা অথবা পুখুৰী খন্দাই আহিছে, সেইসমূহৰ পৰিষ্কৰণৰ দিহা কৰি আহিছে। কোনোবাই হয়তো দুখীয়াসকলক চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আহিছে। কিমান বাৰ যে মন কি বাতত এনেবোৰ কথা উল্লেখ কৰিবলৈ গৈ মই আৱেগিক হৈ পৰিছোঁ। আকাশবাণীৰ বন্ধুসকলে কিমান বাৰ যে এইবোৰৰ বাৰে বাৰে বাণীবদ্ধ কৰিবলগীয়া হৈছে। আজি বিগত দিনসমূহৰ কিমান যে কথা চকুৰ আগত অহা যোৱা কৰিছেহি। দেশবাসীৰ এই সমূহ প্ৰয়াসে মোক অবিৰতভাৱে নিজকে উৎসৰ্গিত হোৱাৰ প্ৰেৰণা দি আহিছে। বন্ধুসকল, মন কি বাতত যিসকল লোকৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ, তেওঁলোক হৈছে আমাৰ হিৰো, আমাৰ নায়ক, যিসকলে এই কাৰ্যক্ৰমক জীৱন্ত কৰি ৰাখিছে। আজি যেতিয়া আমি 100 সংখ্যক খণ্ডত উপনীত হৈছোহি, তেতিয়া মোৰ এনে কৰিবলৈও মন গৈছে যে আমি আকৌ এবাৰ পুনৰাই এই সকলো নায়কৰ কাষলৈ গৈ তেওঁলোকৰ যাত্ৰাৰ বিষয়ে অৱগত হওঁ। আজি আমি কিছুসংখ্যক বন্ধুৰ সৈতে কথা বতৰা পতাৰ চেষ্টাও কৰিম। মোৰ সৈতে জড়িত হৈছে হাৰিয়ানাৰ ভাই সুনীল জগলানজী। মোৰ মনত সুনীল জগলানজীৰ ইমান প্ৰভাৱ এই কাৰণেই পৰিছে কিয়নো হাৰিয়ানাত লিংগ অনুপাত সন্দৰ্ভত যথেষ্ট আলোচনা চলিছিল আৰু ময়ো বেটি বচাও বেটি পঢ়াও অভিযান হাৰিয়ানাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু এইখিনি সময়তে যেতিয়া সুনীলজীৰ সেলফি উইথ ডটাৰ কেম্পেইনৰ ওপৰত মোৰ চকু পৰিছিল, তেতিয়া মোৰ খুব ভাল লাগিছিল। মই তেওঁৰ পৰা শিকিছিলোঁ আৰু ইয়াক মন কি বাতত জড়িত কৰিছিলোঁ। চাই থাকোঁতে সেলফি উইথ ডটাৰ এক বিশ্বজোৰা অভিযানত পৰিণত হৈছিল। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু বিষয়বস্তু সেলফি নাছিল, প্ৰযুক্তিও নাছিল। ইয়াত জীয়ৰীক, ছোৱালীকহে প্ৰাধান্য দিয়া হৈছিল। জীৱনত কন্যাৰ স্থান কিমান ডাঙৰ, এই অভিযানৰ জৰিয়তে এই কথাকেহে প্ৰকাশ কৰা হৈছিল। এনেদৰে আৰু বহুত প্ৰয়াসৰ পৰিণাম স্বৰূপে আজি হাৰিয়ানাত লিংগ অনুপাতৰ শুধৰণি হৈছে। আহকচোন আজি সুনীলজীৰ লগতে কিছু কথা বতৰা পাতি লওঁ। नमस्कार सर, मेरी खुशी बहुत बढ़ गई है सर आपकी आवाज सुनकर। सुनील जी, सेल्फी विद डॉटर हर किसी को याद है। अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी, ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाणा से पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है, तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। सुनील जी, अब आपकी बिटिया कैसी है? आजकल क्या कर रही है? जी, मेरी बेटियां नंदनी और याचिका है। एक 7th क्लास में पढ़ रही है, एक 4th क्लास में पढ़ रही है और आपकी बड़ी प्रशंसक हैं। उन्होंने आपके लिए थैंक यू प्राइम मिनिस्टर करके अपनी क्लासमेट्स जो हैं लेटर भी लिखवाए थे असल में। वाह 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 वाह। अच्छा, बिटिया को आप मेरा और मन की बात के श्रोताओं का खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी वजह से देश की बेटियों के चेहरे पे लगातार मुस्कान बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। जी शुक्रिया। साथियों, বন্ধুসকল, মোৰ এই কথাৰ বাবে ভাল লাগিছে যে মন কি বাতত আমি দেশৰ নাৰী শক্তিৰ অলেখ প্ৰেৰণাদায়ী কাহিনীৰ চৰ্চা কৰিছোঁ। সেয়া লাগিলে আমাৰ সেনাই হওক বা ক্ৰীড়া জগতেই হওক। মই যেতিয়াই মহিলাসকলৰ সাফল্যৰ কথা কওঁ, তেওঁলোকৰ খুবেই প্ৰশংসা হয়। যেনে ধৰক
আমি ছত্তীশগড়ৰ দেউৰগাঁৱৰ মহিলাসকলৰ সফলতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। এই সকলো মহিলাই আত্মসহায়ক গোটসমূহৰ জৰিয়তে গাঁৱৰ চাৰিসীমা, পথঘাট, মন্দিৰ আদিৰ পৰিষ্কৰণৰ বাবে অভিযান চলাইছিল। এনেদৰে তামিলনাডুৰ সেইসকল আদিবাসী মহিলা যিসকলে হাজাৰ হাজাৰ পৰিৱেশ অনুকূল টেৰাকোটা কাপ ৰপ্তানি কৰিছে, তেওঁলোকৰ পৰাও দেশে বাৰুকৈয়ে অনুপ্ৰেৰণা লৈছে। তামিলনাডুতেই 20,000 মহিলাই একত্ৰিত হৈ ভেলোৰৰ নাগ নদীখনক পুনৰুজ্জীৱিত কৰি তুলিছিল। এনে কিমান যে অভিযানৰ নেতৃত্ব আমাৰ নাৰীসকলে গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু মন কী বাত সেইসমূহ প্ৰয়াসক সকলোৰে সন্মুখলৈ অনাৰ মঞ্চ হৈ উঠিছে। বন্ধুসকল, এতিয়া আমাৰ সৈতে ফোন লাইনত আৰু এগৰাকী সজ্জন সংযোজিত হৈছে। এখেতৰ নাম মঞ্জুৰ আহমেদ। মন কী বাতত জম্মু কাশ্মীৰৰ পেন্সিল স্লেটৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁতে মঞ্জুৰ আহমেদজীৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছিল। थैंक यू सर, बड़े अच्छे से है सर। मन की बात के इस 100वें एपिसोड में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। अच्छा, ये पेंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे से चल रहे हैं सर, बहुत अच्छे से। जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर, तब से बहुत काम बढ़ गया सर, और दूसरों को भी रोजगार यहाँ बहुत बड़ा है इस काम में। कितने लोगों को अब रोजगार मिलता होगा? अभी मेरे पास 200 प्लस है। अरे वाह मुझे बहुत खुशी हुई। जी सर, जी सर। अभी 1-2 महीने में अभी मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ कि और 200 लोगों को रोजगार बढ़ जाएगा सर। वाह वाह वाह। देखिए मंजूर जी, जी सर, मुझे बराबर याद है, और उस दिन आपने मुझे कहा था कि ये एक ऐसा काम है जिसकी न कोई पहचान है, न स्वयं की पहचान है, और आपको बड़ी पीड़ा भी थी, और इस वजह से आपको काफी बड़ी मुश्किलें होती थी, वो भी आप कह रहे थे। लेकिन अब तो पहचान भी बन गई और 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जी सर, जी सर। और नया एक्सपांशन करके और 200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की खबर दी आपने। एवं सर यहाँ पे जो फार्मर है सर, उनका भी बहुत बड़ा इसमें फायदा मिला सर। तब से 2000 का ट्री बेचते थे, अभी वही ट्री 5000 तक पहुँच गया सर। इतनी डिमांड बढ़ गई सर इसमें तब से, और अपनी पहचान भी बन गई। इसमें बहुत से आर्डर है अपने पास सर। अभी मैं आगे 1-2 महीने में और एक्सपेंड करके और 2-250 गाँव में जितने भी लड़के लड़के हैं इसमें एडजस्ट हो सकता है, उनका भी रोजी रोटी चल सकता है सर। देखिए मंजूर जी, वोकल फॉर लोकल की ताकत कितनी जबरदस्त है, आपने धरती पर उतार के दिखा दिया है। जी सर, जी सर। मेरी तरफ से आपको और गांव के सभी किसानों को और आपके साथ काम कर रहे हैं सभी साथियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। धन्यवाद सर। साथियों, বন্ধুসকল, আমাৰ দেশত এনে কিমান যে প্ৰতিভাশালী লোক আছে যিসকলে নিজৰ শ্ৰমৰ বলতে সফলতাৰ শিখৰ চুবগৈ পাৰিছে। মোৰ মনত আছে বিশাখাপট্টনমৰ ভেংকট মুৰলী প্ৰসাদজীয়ে এখন আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত চাৰ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছিল। কেনেকৈ অধিক হাৰত ভাৰতীয় সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰে সেই বিষয়ে তেওঁ কৈছিল। যেতিয়া বেটিয়াৰ প্ৰমোদজীয়ে LED বাল্ব তৈয়াৰ কৰা সৰু গোট স্থাপন কৰিছিল, অথবা গড়মুক্তেশ্বৰৰ সন্তোষজীয়ে মেট নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লৈছিল, মন কী বাতেই তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহক সকলোৰে সন্মুখলৈ অনাৰ মাধ্যম হৈ উঠিছিল। আমি মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ অনেক নিদৰ্শনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্পেচ ষ্টাৰ্টআপ পৰ্যন্ত বিভিন্ন চৰ্চা মন কী বাতত কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ চাগে মনত আছে কেইটামান খণ্ডৰ আগতে মই মণিপুৰৰ ভগ্নী বিজয়া শান্তি দেৱীজীৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰিছিলোঁ। বিজয়া শান্তিজীয়ে পদুমৰ ঠাৰিৰ আহেৰে কাপোৰ তৈয়াৰ কৰে। মন কী বাতত তেওঁৰ এই অনন্য পৰিৱেশ অনুকূল চিন্তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ পাছত তেওঁৰ কাম আৰু জনপ্ৰিয়তা অধিক বৃদ্ধি পাইছিল। আজি বিজয়া শান্তিজী ফোনেৰে আমাৰ সৈতে জড়িত হৈছে। शांति जी, how are you? Sir, I am fine. And how is your work going on? Sir, still working along with my 30 women. In such a short period, you have reached 30% team. Yes, sir. This year also more expand with 100 women in my area. So your target is 100 women. Yeah, 100 women.
And now people are familiar with this lotus stem fiber? Yes, sir. Everyone know from Man Ki Baat program all over India. So now it's very popular. Yes, sir. From Prime Minister Man Ki Baat program, everyone knows about the lotus fiber. So now you got the market also. Yes, sir. I have got a market from USA also. They want to buy in bulk, in large quantities. But I want to give from this year to send the US also. So now you are exporter. Yes, sir. From this year, I export our product made in India, lotus fiber. So when I say vocal for local and now local for global. Yes, sir. I want to reach my product all over the globe of world. So congratulations and wish you best luck. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Vijaya Shanti. Thank you, sir. বন্ধুসকল, মন কী বাতৰ আৰু এটা বিশেষত্ব আছে। মন কী বাতৰ জৰিয়তে কিমান যে জন আন্দোলনে জন্মও লৈছে আৰু গতিও লাভ কৰিছে। যেনে ধৰক আমাৰ খেলনা সামগ্ৰী, আমাৰ টয় ইণ্ডাষ্ট্ৰীক পুনৰাই প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ অভিযান মন কী বাতৰ পৰাইতো শুভাৰম্ভ কৰা হৈছিল। ভাৰতীয় পৰম্পৰাগত ঔষধৰ প্ৰতি সজাগতা বঢ়োৱাৰ শুভাৰম্ভওতো মন কী বাতৰ পৰাই কৰা হৈছিল। আমি আৰু এটা পদক্ষেপৰ সূচনা কৰিছিলোঁ যে আমি দুখীয়া ক্ষুদ্ৰ দোকানী পোহাৰীসকলৰ ওচৰত দৰদাম নকৰিম, তেওঁলোকৰ সৈতে কাজিয়া পেচাল নকৰিম। যেতিয়া হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগাৰ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল তেতিয়াও মন কী বাতে দেশবাসীক এই সংকল্পেৰে জড়িত কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সুন্দৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল। এনে প্ৰতিটো উদাহৰণে সমাজলৈ পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা কৰাৰ কাৰক হৈ উঠিছিল। সমাজক অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ এনে এক দায়িত্ব প্ৰদীপ সোংৱানজীয়েও গ্ৰহণ কৰিছিল। মন কী বাতত আমি প্ৰদীপ সোংৱানজীৰ হিলিং হিমালয়াজ অভিযানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। তেখেত এতিয়া আমাৰ সৈতে ফোন লাইনত আছে। सर जय हिंद। जय हिंद भैया। कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, आपकी आवाज सुन के और भी अच्छी। आपने हिमालय को हील करने को सोची, हाँ जी सर। अभियान भी चलाया। आजकल आपका कैंपेन कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है। 2020 से ऐसा मानिए कि जितना काम हम 5 साल में करते थे अब वो 1 साल में ही हो जाता है। अरे वाह। हाँ जी सर। शुरुआत बहुत नर्वस हुई थी, बहुत डर था इस बात को लेके कि जिंदगी भर ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर थोड़ा सपोर्ट मिला और 2020 तक हम बहुत स्ट्रगल भी कर रहे थे। ऑनेस्टली लोग बहुत कम जुड़ रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, हमारी मुहिम को इतना तवज्जो भी नहीं दे रहे थे। बट 2020 के बाद जब मन की बात में जिक्र हुआ उसके बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। मतलब पहले हम साल में 6-7 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे, 10 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे। आज की डेट में हम डेली बेसिस पे 5 टन कचरा इकट्ठा करते हैं अलग अलग लोकेशन से। अरे वाह। मन की बात में जिक्र होने के बाद आप सर बिलीव करें मेरी बात को कि मैं ऑलमोस्ट गिव अप करने की स्टेज पे था एक टाइम पे, और उसके बाद फिर बहुत सारा बदलाव आया मेरे जीवन में और चीजें इतनी स्पीड अप हो गई कि जो चीजें हमने सोची नहीं थी। सो आई एम रियली थैंकफुल कि पता नहीं कैसे हमारे जैसे लोगों को आप ढूंढ लेते हैं, कौन इतनी दूर दराज एरिया में काम करता है, हिमालय के क्षेत्र में जाके बैठ के हम काम कर रहे हैं, सॉल्टिट्यूड पे काम कर रहे हैं, वहां पे आपने ढूंढा हमें, हमारे काम को दुनिया के सामने लेके आए। तो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था तब भी और आज भी कि मैं हमारे देश के जो प्रथम सेवक हैं उनसे मैं बातचीत कर पा रहा हूँ। मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। प्रदीप जी, आप तो हिमालय के चोटियों पर सच्चे अर्थ में साधना कर रहे हैं और मुझे पक्का विश्वास है अब आपका नाम सुनते ही लोगों को याद आ जाता है कि आप कैसे पहाड़ों की स्वच्छता अभियान में जुड़े हैं। हाँ जी सर। और जैसा आपने बताया कि अब तो बहुत बड़ी टीम बनती जा रही है और आप इतनी बड़ी मात्रा में डेली काम कर रहे हैं। हाँ जी सर। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इन प्रयासों से, उसकी चर्चा से अब तो कितने ही पर्वतारोही स्वच्छता से जुड़े फोटो पोस्ट करने लगे हैं। हाँ जी सर, बहुत। ये अच्छी बात है। आप जैसे साथियों के प्रयास के कारण वेस्ट इज ऑल्सो ए वेल्थ, ये लोगों के दिमाग में अब स्थिर हो रहा है और पर्यावरण की भी रक्षा हो रही है और हिमालय का जो हमारा गर्व है उसको संभालना, संवारना वो सामान्य मानवी जुड़ रहा है। प्रदीप जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद। साथियों, বন্ধুসকল, আজিৰ তাৰিখত
পৰ্যটনে দ্ৰুতগতিত বিকাশ লাভ কৰিবলৈ ধৰিছে। আমাৰ এই প্ৰাকৃতিক সংসাধনেই হওক, নদী, পাহাৰ, খাল, বিল অথবা আমাৰ তীৰ্থস্থানসমূহেই হওক, এইসমূহক পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰখাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় কথা। ইয়ে পৰ্যটন উদ্যোগকো বাৰুকৈয়ে সহযোগিতা আগবঢ়াব। পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনত স্বচ্ছতাৰ লগতে আমি অতুল্য ভাৰত আন্দোলনৰ সন্দৰ্ভতো বহুবাৰ চৰ্চা কৰিছোঁ। এই আন্দোলনেৰে ৰাইজে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনে কিমান যে ঠাইৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছে, যিবোৰ ঠাই হয়তো তেওঁলোকৰ ওচৰ পাজৰৰে আছিল। মই সদায় কৈ আহিছোঁ যে আমি পৰ্যটনৰ বাবে বিদেশলৈ যোৱাৰ আগতে আমাৰ দেশৰ কমেও 15টা পৰ্যটনস্থলীলৈ যোৱা উচিত। আৰু এইসমূহ গন্তব্যস্থান যিখন ৰাজ্যত আপুনি থাকে সেইখন ৰাজ্যৰ হ'ব নালাগিব। আপোনাৰ ৰাজ্যখনৰ বাহিৰে আন কোনো ৰাজ্যৰ হোৱা উচিত। এনেদৰে আমি স্বচ্ছ চিয়াচিন, এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক আৰু আৱৰ্জনাৰ দৰে গম্ভীৰ বিষয় সন্দৰ্ভতো নিৰন্তৰ আলোচনা কৰি আহিছোঁ। আজি সমগ্ৰ পৃথিৱীয়ে পৰিৱেশৰ যি সমস্যাক লৈ ইমানকৈ চিন্তিত হৈ আহিছে, তাৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত মন কী বাতৰ এই প্ৰয়াস হৈছে নিতান্তই গুৰুত্বপূৰ্ণ। বন্ধুসকল, মন কী বাতৰ বাবে মোলৈ এইবাৰ এটা বিশেষ বাৰ্তা ইউনেস্কোৰ সঞ্চালক প্ৰধান অড্ৰে আজুলেৰ পৰা আহিছে। তেখেতে সকলো দেশবাসীক 100 সংখ্যক খণ্ডৰ এই সুন্দৰ যাত্ৰাৰ বাবে শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছে। লগতে তেখেতে কিছু প্ৰশ্নও সুধিছে। আহকচোন প্ৰথমে ইউনেস্কোৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ মনৰ কথা শুনো। Namaste, Excellency, dear Prime Minister. On behalf of UNESCO, I thank you for this opportunity to be part of the 100th episode of the Man Ki Baat radio broadcast. UNESCO and India have a long common history. We have very strong partnerships together in all areas of our mandate: education, science, culture, and information. And I would like to take this opportunity today to talk about the importance of education. UNESCO is working with its member states to ensure that everyone in the world has access to quality education by 2030. With the largest population in the world, could you please explain the Indian way to achieving this objective? UNESCO also works to support culture and protect heritage, and India is chairing the G20 this year. World leaders will be coming to Delhi for this event. Excellency, how does India want to put culture and education at the top of the international agenda? I once again thank you for this opportunity and convey my very best wishes through you to the people of India. À bientôt. Merci beaucoup. Thank you, Excellency. I am happy to interact with you in the 100th Man Ki Baat program. I am also happy that you have raised the important issues of education and culture. साथियों, বন্ধুসকল, ইউনেস্কোৰ সঞ্চালক প্ৰধানে এডুকেশ্যন আৰু কালচাৰেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন অৰ্থাৎ শিক্ষা আৰু সংস্কৃতিৰ সংৰক্ষণক লৈ ভাৰতে গ্ৰহণ কৰা প্ৰয়াসসমূহৰ সন্দৰ্ভত জানিব খুজিছে। এই দুয়োটা বিষয়ে মন কী বাতৰ পচন্দৰ বিষয় হৈ আহিছে। শিক্ষাৰ কথাই হওক অথবা সংস্কৃতিৰেই হওক, এইসমূহৰ সংৰক্ষণৰ কথাই হওক বা সংবৰ্ধনৰ কথাই হওক, ভাৰতৰ বাবে এয়া হৈছে প্ৰাচীন পৰম্পৰা। এই দিশত আজি দেশে যি কাম কৰি আহিছে সেয়া প্ৰকৃতাৰ্থতে খুবেই প্ৰশংসনীয়। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিয়েই হওক অথবা ক্ষেত্ৰীয় ভাষাত পঢ়োৱাৰ বিকল্পই হওক, শিক্ষা আৰু প্ৰযুক্তিৰ সংহতকৰণেই হওক, আপোনালোকে এনে অনেক প্ৰয়াস দেখিবলৈ পাব। বহু বছৰ আগতে গুজৰাটত উন্নত শিক্ষা দিয়াৰ লগতে আধাতে বিদ্যালয় এৰা শিক্ষাৰ্থীৰ হাৰ কমোৱাৰ বাবে গুণোৎসৱ আৰু প্ৰৱেশ উৎসৱৰ দৰে কাৰ্যক্ৰম জন অংশীদাৰিত্বৰ এক অভিনৱ নিদৰ্শন হৈ উঠিছিল। মন কী বাতত আমি এনে কিমান যে ব্যক্তিৰ প্ৰয়াসসমূহক বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰি আহিছোঁ, যিসকলে নিস্বাৰ্থভাৱেৰে শিক্ষাৰ বাবে কাম কৰি আহিছে। আপোনালোকৰ চাগে মনত আছে, এবাৰ আমি ওড়িশাত ঠেলাত চাহ বিক্ৰী কৰা স্বৰ্গীয় ডি প্ৰকাশ ৰাওজীৰ বিষয়ে চৰ্চা কৰিছিলোঁ, যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীহঁতক পঢ়োৱাৰ অভিযানত ব্ৰতী হৈছিল।
ঝাৰখণ্ডৰ গাঁওসমূহত ডিজিটেল লাইব্ৰেৰীৰ প্ৰচলন কৰা সঞ্জয় কাশ্যপজীয়ে হওক, কোভিডৰ সময়ছোৱাত ই-লাৰ্ণিঙৰ জৰিয়তে বহুসংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীক সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱা হেমলতা এনকেজিয়ে হওক, এনে অনেক শিক্ষকৰ উদাহৰণ আমি মন কী বাতত উল্লেখ কৰিছোঁ। আমি সাংস্কৃতিক সংৰক্ষণৰ প্ৰয়াসকো মন কী বাতত নিৰন্তৰ ঠাই দি আহিছোঁ। লাক্ষাদ্বীপৰ কুমেল ব্ৰাদাৰ্ছ চেলেঞ্জাৰ্ছ ক্লাবেই হওক অথবা কৰ্ণাটকৰ কেম শ্ৰীজীৰ কলা চেতনাৰ দৰে মঞ্চই হওক, দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মোলৈ চিঠি লিখি এনেবোৰ উদাহৰণৰ কথা উল্লেখ কৰি আহিছে। আমি সেই তিনিটা প্ৰতিযোগিতাৰ বিষয়েও কথা পাতিছিলোঁ, যি আছিল দেশভক্তিমূলক গীত, নিচুকনি গীত আৰু ৰংগুলিৰে জড়িত। আপোনালোকৰ মনত আছে চাগে, এবাৰ আমি দেশৰ সাধু কওঁতাসকলে সাধু কোৱাৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ ভাৰতীয় পৰম্পৰাৰ বিষয়েও আলোচনা কৰিছিলোঁ। মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে সামূহিক প্ৰয়াসেৰে বৃহৎ বৃহৎ পৰিৱৰ্তনো সাধন কৰিব পৰা যায়। এই বছৰ আমি যেতিয়া স্বাধীনতাৰ অমৃতকাললৈ আগবাঢ়িছোঁ, সেই সময়তে G20ৰো সভাপতিত্ব কৰি আহিছোঁ। এই কাৰণেও শিক্ষাৰ লগতে বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ গোলকীয় সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধ কৰাৰ বাবে আমাৰ সংকল্প আৰু শক্তিশালী হৈ উঠিছে। মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী, আমাৰ উপনিষদৰ এষাৰ মন্ত্ৰই বহু শতাব্দী ধৰি আমাৰ মননক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে। সৰয়ৱতী সৰয়ৱতী সৰয়ৱতী, আগুৱাই যোৱা আগুৱাই যোৱা আগুৱাই যোৱা। আজি আমি এই সৰয়ৱতী সৰয়ৱতীৰ ভাৱনাকে সৰগত কৰি মন কী বাতৰ 100 সংখ্যক খণ্ড সম্পূৰ্ণ কৰিব খুজিছোঁ। ভাৰতৰ সামাজিক ঐক্যক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মন কী বাত হৈছে কোনো এডাল মালাৰ সেই সূতাডালৰ দৰে, যি প্ৰতিটো মনকে বান্ধি ৰাখিছে। প্ৰতিটো খণ্ডত দেশবাসীৰ সেৱা আৰু সামৰ্থ্যই আনসকলক অনুপ্ৰেৰণা দি আহিছে। এই কাৰ্যক্ৰমত প্ৰতিগৰাকী দেশবাসী আন দেশবাসীৰ প্ৰেৰণা হৈ আহিছে। এফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে মন কী বাতৰ প্ৰতিটো খণ্ডই আগন্তুক খণ্ডৰ বাবে ভেটি নিৰ্মাণ কৰিছে। মন কী বাতে সদায় সদ্ভাৱনা, সেৱা ভাৱনা আৰু কৰ্তব্য ভাৱনাকেই আগবঢ়াই আনিছে। স্বাধীনতাৰ অমৃতকালত এই ইতিবাচকতাই দেশক আগুৱাই লৈ যাব, নতুন উচ্চতালৈ লৈ যাব। আৰু মোৰ ভাল লাগিছে যে মন কী বাতেৰে যি আৰম্ভ হয়, সেয়া আজি দেশৰ নতুন পৰম্পৰাও হৈ উঠিছে। এনে এক পৰম্পৰা য'ত আমাৰ সকলোৰে প্ৰয়াসৰ ভাৱনাক দৰ্শন কৰিব পৰা যায়। বন্ধুসকল, মই আজি আকাশবাণীৰ সতীৰ্থসকলকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যিসকলে বহুত ধৈৰ্যৰে এই সমগ্ৰ কাৰ্যক্ৰমটোৰ বাণীবন্ধন কৰি আহিছে। সেইসকল অনুবাদক, যিসকলে খুব কম সময়তে অতি দ্ৰুত গতিৰে মন কী বাতৰ বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষালৈ অনুবাদ কৰি আহিছে, মই সেইসকলৰ প্ৰতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই দূৰদৰ্শন আৰু মাই গভৰ বন্ধুসকলকো ধন্যবাদ দিছোঁ। দেশৰ টেলিভিছন চেনেল, ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ লোকসকল, যিয়ে মন কী বাতক বাণিজ্যিক বিৰতি নোলোৱাকৈ প্ৰদৰ্শনৰ দিহা কৰি আহিছে, সেই সকলোৰে প্ৰতি মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু সৰ্বশেষত মই সেইসকলৰ প্ৰতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যিসকলে মন কী বাতৰ দায়িত্ব চম্ভালি ভাৰতৰ জনতা, ভাৰতৰ প্ৰতি আস্থা ৰাখি আহিছে। এই সকলোখিনি আপোনালোকৰ প্ৰেৰণা আৰু সামৰ্থ্যৰেহে সম্ভৱ হৈছে। বন্ধুসকল, হওঁতে মোৰ মনত আজি ইমান কথা ক'বলৈ আছে যে সময় আৰু শব্দ এই দুয়োটাই কম যেন লাগিছে। কিন্তু মোৰ বিশ্বাস যে আপোনালোক সকলোৱে মোৰ মনৰ অৱস্থা বুজি পাইছে, মোৰ ভাৱনাকো বুজিব পাৰিছে। আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ এজন সদস্য হিচাপে মন কী বাতৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজতে থাকিম। অহা মাহত আমি আকৌ এবাৰ মিলিত হ'ম, পুনৰ নতুন বিষয় আৰু নতুন তথ্যৰ সৈতে দেশবাসীৰ সাফল্যসমূহক উদযাপন কৰিম। তেতিয়ালৈকে মোক বিদায় দিয়ক আৰু নিজৰ লগতে আত্মীয়সকলৰ প্ৰতি সজাগ হৈ থাকক। বহুত বহুত ধন্যবাদ। নমস্কাৰ। सचदेवी
तभी कबूल होते हैं जब सर के साथ दिल भी झुका हो। मन की बात के 100वें संस्करण के प्रसारण के बाद अब मैं आज के मुख्य अतिथि असम के राज्यपाल महामहिम गुलाब चंद जी कटारिया जी को मोदी जी के मन की बात की 100वीं कड़ी के शुभ अवसर पर अपने विचार रखने के लिए आदरपूर्वक निवेदन करता हूँ। नमस्कार। ये राजभवन का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी की मन की बात का ये 100वां एपिसोड आप सबकी उपस्थिति में हम सब लोगों ने यहाँ सुना है। मैं आप सबका यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में डायरेक्टर नुमल मोमिनी हमारे डिप्टी स्पीकर साहब यहाँ विराजमान हैं, उनका स्वागत है। जो अवार्डी हैं उनमें से भी कुछ बंधु यहाँ उपस्थित हैं। मिस्टर अली अहमद राइटर जी यहाँ पधारे, उनका स्वागत है। डॉक्टर इलियास अली जी पधारे, उनका स्वागत है। डॉक्टर कुशल कुंवर शर्मा जी पधारे, उनका स्वागत है। डॉक्टर रोमन शर्मा जी पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। और हमारे श्री समुद्रगुप्त कश्यप जी स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर आसाम यहाँ हैं, उनका स्वागत। श्री महेंद्र सिंह जी IAS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आसाम उपस्थित हैं, आपका स्वागत है। डॉक्टर हरमीत सिंह जी IPS और स्पेशल DGP आसाम उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत। और आप सभी पधारे हुए बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। वैसे मैंने भी अपनी राजनीति के 44 साल के जीवन निकाले हैं, लेकिन ये मैं पहली बार देखा है कि कोई देश का प्रधानमंत्री अपनी मन की बात के आधार से जो वो सोचते हैं वो जनता तक पहुंचाते हैं, और जनता जो कुछ भी उनके बारे में और सरकार के बारे में विचार रखती है उसको भी वो सुन करके उसका हल निकालने का प्रयास करते हैं। ये वास्तव में देश का सौभाग्य है कि 2014 की 3 अक्टूबर से शुरू हुआ कार्यक्रम आज इसका 100वां एपिसोड पूरा कर रहा है, और बिना किसी विघ्न के। मैं सोचता हूँ कि कार्यक्रम तो कई लोग शुरू करते हैं, लेकिन उसको निरंतरता में रखना, समयबद्ध करना और उसको उस ऊंचाई पर ले जाना जिसको जन जन स्वीकार कर ले और जनता अपने मन से उसके साथ जुड़ जाए, ये शायद पहली बार दुनिया में अगर कहीं देखने को मिला है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मन की बात थी उसके आधार पर आपने और मैंने सब देखा है। मैं सोचता हूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जी के अमेरिका में उपस्थित थे उस दिन 27 जनवरी 15 को, और उस दिन उनको मन की बात को उन्होंने भी शेयर किया, और उसके बाद वो यहाँ भारत में भी आकर के हमारे फंक्शन में सम्मिलित हुए, और उन्होंने इसको जिस ढंग से स्वीकार किया, ये देश के लिए गौरव की विषय है। मैं सोचता हूँ कि इस बात से उन्होंने सामान्य जन को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। जैसा लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से उन्होंने जिस प्रकार से जनता को जोड़ा है, लगभग 90 करोड़ लोग कम और बेशी इस मन की बात को लोग सुन चुके हैं। हमको बहुत आश्चर्य है इस बात का कि उन्होंने जिस माध्यम को चुना है वो ऑल इंडिया रेडियो को चुना है। यह भी शायद उनकी बहुत बड़ी सोच थी, क्योंकि सामान्य जन के पास आज भी गाँवों में टीवी नहीं है। आज भी सामान्यतः हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में कईयों के पास मोबाइल नहीं है, और इसलिए इस बात को ठेठ नीचे तक कैसे पहुंचाया जाए, तो उसका सबसे सशक्त साधन रेडियो है। यानी गांव में आदिवासी का बच्चा भी रेडियो का एक छोटा सा लेकर के भी गाने सुनता हुआ दिखाई देता है, और उसके कारण से अपनी बात को सर्वसामान्य जनता, गरीब जनता, जो साधनहीन जनता है,
उसके पास भी अपनी मन की बात को पहुंचाने का जो सशक्त साधन प्रयोग किया है वो भी अपने आप में एक बड़ा आदर्श है। मैं सोचता हूं कि मन की बात आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी है। यानी सामान्य जन के जीवन को प्रभावित करने वाली बातों को उन्होंने अपनी मन की बात से रखा, लोगों ने उसको सोशल मीडिया के द्वारा आगे बढ़ाया और आगे चल कर के वो जन आंदोलन के रूप में स्वीकार हो गया। जब पहली बार उन्होंने स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया तब कई लोगों ने हंसी उड़ाई थी कि देश का प्रधानमंत्री के झाड़ू पकड़ने से क्या होगा, लेकिन उन्होंने इस बात को ठेठ जन जन तक पहुंचा करके प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ लिया और उसके कारण से आज आप देखते हैं कि जैसे हिमालय की सफाई के बारे में, आप तो उसकी बात छोड़ो, रेलवे स्टेशन पर आप भी गए हो, मैं भी गए, इतने सालों तक रोज़ रेलवे पे जाते थे, लेकिन जब तक ट्रेन नहीं आती थी तब तक दूर जा कर के बैठते थे क्योंकि नीचे इतनी बदबू आती है कि उसके पास बैठ नहीं सकते। आज की तारीख में हिंदुस्तान का कोई भी रेलवे स्टेशन ऐसा नहीं है जो आपके घर से ज़्यादा साफ नहीं है। यह स्वच्छता को इस रूप पे स्वीकार करना और यहाँ तक पहुँचा देना बहुत बड़ी बात है। मैं सोचता हूँ कि कोविड के वैक्सीन के समय में जिस प्रकार की स्थिति बनी, उस वैक्सीन को भी जन जन तक पहुँचाना और जनता का सहयोग लेकर के उसको है ना 130 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचा देना और उसमें किसी प्रकार का कोई झगड़ा टंटा ना होना, जिस सीरियल वाइज, और उसका माध्यम क्या बना, ये मन की बात बना। आपने देखा हो घर घर तिरंगा की बात जो उन्होंने पहुंचाई, वो घर घर तिरंगा भी इसी मन की बात के आधार पर हिंदुस्तान के प्रत्येक जन को जोड़ा और जोड़ने के कारण से लोगों ने उसको स्वीकार किया। तो वास्तव में उन्होंने हिंदुस्तान के किसान को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया और किसान की जो समस्याएं हैं उनको समझने का भी प्रयास किया, उसकी मन की बात को समझने। मैं सोचता हूं कि यह जो अपनी मिट्टी की जो गुणवत्ता है इसके बारे में उन्होंने विषय दिया और हिंदुस्तान के 11 करोड़ लोगों ने अपनी मिट्टी का परीक्षण करके उसकी क्वालिटी को समझ लिया। फसल का अच्छा दाम कैसे मिले, इससे उसको जोड़ने का प्रयास किया। किसान की आमदनी दुगनी कैसी हो, उसको उससे जोड़ने का प्रयास किया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आधार पर उसको कैसे लाभ मिले, उसको जोड़ने का प्रयास किया। सिंचाई के साधनों का कैसे उपयोग किया जाए, उसके बारे में उसको जोड़ने का प्रयास, और नौजवान को भी जोड़ा। मैं सोचता हूँ कि नौजवान सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन जो उसके दिमाग में रहता है, परीक्षा एक हवा है उसके ऊपर, और परीक्षा के कारण से आप और हम कई बार अपने बच्चे से बहुत बड़ी उम्मीद रखते हैं ये सब IAS ही बनना चाहिए, डॉक्टर ही बनना चाहिए, इंजीनियर, और वो बच्चा इतना दबाव में रहता है कि वो कई बार उस पर नज़दीक नहीं पहुंच पाता है। तो मेरे यहाँ विशेष करके कोटा में इतने बच्चों की आत्महत्या होती है। माँ बाप तो ये सोच करके भेजते हैं कि मेरा बच्चा कल का मेरा भविष्य है, लेकिन दबाव के कारण से इसके बारे में भी देश का प्रधानमंत्री बात करता है कि परीक्षा पास करना यही जीवन का उद्देश्य नहीं है, मनुष्य जीवन इससे ऊपर भी कुछ है। इस बात की ओर उन्होंने उन बच्चों को प्रेरित करने का प्रयास किया। मैं सोचता हूं कि बच्चों की क्वालिटी को पहचानने का उन्होंने प्रयास किया, बच्चों को अपने इतिहास से जोड़ने का प्रयास किया, है ना। बच्चों की क्षमता को, है ना, सपने देखने की आदत भी होनी चाहिए और उसको प्राप्त करने के लिए भी प्रयास होना चाहिए। तो एक तरह से नौजवान पीढ़ी को भी उससे जोड़ने का प्रयास किया। तो मैं ऐसे सोचता हूं, जो आप में से कई लोगों ने सुना है, उन्होंने देश की सभी प्रकार की बातों से अपने इस एपिसोड के द्वारा जनता से सीधा जुड़े। और अभी आपने देखा कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको ढूंढना असंभव लगता भी है। हमने भी अपनी ज़िंदगी के इतने साल गुजार दिए, लेकिन हमें भी पता नहीं लगा कि कौन आदमी कहाँ किस प्रकार का काम कर रहा है। मेरे यहाँ उदयपुर में एक बेदला गांव है, जहाँ गांव के लोगों ने अपनी बावड़ी को इतनी साफ़ सुथरी की, तो वो इसको उस एपिसोड को भी उन्होंने जोड़ करके मन की बात में जब उसका वर्णन किया, अभी कुछ नमूने आपके सामने रखे हैं। इसका मतलब उस व्यक्ति को लगता है कि ये व्यक्ति कितनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे करके देश के लोगों को अपने मन के साथ जोड़ता है। सरकार की योजनाएं तो कई हैं, पर सरकार की योजनाओं को जनता के साथ शेयर करके जनता को उसकी ओर अग्रसर कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि उन्होंने हर चीज़ को, जनता की जो समस्याएं हैं जिनके बारे में सोचते हैं, अब आपने और मैंने सोचा नहीं था कि 45 करोड़ जनधन के खाते खुल जाएंगे। हिंदुस्तान में राज इतने समय तक हमने भी देखा है,
लेकिन सरकार का पैसा हमेशा केस में जाता था और उसके कारण से कुछ न कुछ कट लग जाता था। उस गरीब के पास वो पैसा नहीं पहुंचता था जिसके नाम से निकला हुआ था। इस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार ये सोचा कि नहीं, जनधन के खाते खुलाओ, सरकार का जितना पैसा है सीधा खाते में भेजो ताकि 100% उस व्यक्ति को मिले जो इसका हकदार है। इस बात को पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को है तो इसी मन की बात के आधार पर उन्होंने खाते खुलाओ, खाते खुलाओ। पहली बार आपको भी समझ में नहीं आया, हमें भी समझ में आया, रोज़ क्या जिद करते हैं खाते खुलाओ, लेकिन खाते खुलाने से जो लीकेज था उस लीकेज को उन्होंने समाप्त कर दिया। और जिस दिन आपने सोचा होगा 17 के अंदर जब करेंसी बंद हुई थी तो हाँ, अपने सबके दिमाग में लगा कि होगा क्या, है ना। लोगों को लगा एक उत्पात मच गया, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन उन्होंने अपनी मन की बात के आधार पर देश के लोगों को उसकी वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास किया कि इस देश में इतनी करेंसी, है ना, फर्जी करेंसी आ गई है जिसके कारण से देश में कई प्रकार के उत्पात हो रहे हैं। उन्होंने ये जो आपका इस पूर्वांचल का जिस प्रकार की हिंसक घटनाएं होती थी, जिस प्रकार से अशांति होती थी, इस अशांति को समाप्त करने के यहाँ के लोगों को अपने मन से जोड़ा, उनकी समस्याओं को समझा और समझने के बाद उनके साथ बातचीत करके और उसका स्थायी हल निकालने का प्रयास किया। और उसके कारण से आज पूर्वांचल जिस शांति की ओर जा रहा है वो विकास के अपने आप पायदान उसके पास लग गए। तो वास्तव में देश के प्रधानमंत्री ने हर छोटी से छोटी बात को समझने की कोशिश की और मन की बात के आधार पर आपको और मेरे तक पहुंचाने की कोशिश की। और आपकी और मेरी बात को समझ करके उसका हल निकालने के लिए भी केवल एक साइड से बात नहीं हुई है, ये दोनों साइड से बात होना, यह वास्तव में इसकी सफलता का सबसे बड़ा आधार बना है। और दुनिया में आज दिन तक अगर नरेंद्र मोदी जी को जो ऊंचाई आज मिली है और उनका रेटिंग जो है ना 76%, सारी दुनिया में उनको जो स्थान मिला है उसमें से सबसे बड़ा रोल किसी का है तो ये 100वां एपिसोड मन की बात है, जिसके आधार पर दुनिया की राजनीति को भी समझा दिया कि राजनीति में काम करने वाला जो भी लीडर होता है वो जनता को जब साथ लेकर के काम करने का प्रयास करता है, जनता को जोड़ करके काम करने का प्रयास करता है, जनता की समस्या को समझ करके उसको हल निकालने का प्रयास करता है, तब जाकर के वो सफल होता है। तो मैं सोचता हूँ आज के दिन आप सब लोग यहाँ पधारे, मैं आपका एक बार फिर सभी का स्वागत करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि असम के राज्यपाल महामहिम गुलाब चंद कटारिया जी को धन्यवाद। जिस व्यक्ति ने इस 100 एपिसोड की मंजिल रखी है उनके लिए मैं एक दो शब्द कहना चाहता हूँ। मेरी मोहब्बत की न सही मेरे सलीके की तो दाद दे, तेरा जिक्र रोज करते हैं तेरा नाम लिए बगैर। एक बार फिर से आज की इस सभा में उपस्थित होने के लिए प्रसार भारती की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब महामहिम असम के राज्यपाल की अनुमति से मैं आज की सभा को समापन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। मन की बात की 100वीं कड़ी प्रसारित होने के बाद असम राजभवन के दरबार हॉल में उपस्थित कुछ लोगों ने अपना अनुभव व्यक्त किया। আজি 100 খণ্ড প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কি বাত নহয়, ইয়াৰ মনৰ কথাৰ উপস্থিত থাকিবলৈ পাই আনন্দিত হৈছোঁ। এই মনৰ কথা বা মন কি বাত হ'ল ৰাইজৰ কথা, জনসাধাৰণৰ কথা। এই কথাই আজি গাঁৱে ভূঞে পাহাৰে পৰ্বতে ৰাইজৰ মাজলৈকে বিস্ফোৰিত হৈছে,
মানুহৰ মাজলৈকে গুচি গৈছে আৰু সাধাৰণ মানুহক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে আমাৰ যিজন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে সংযোগ কৰাত সহায় কৰিছে। আৰু সেয়াই নহয়, আমাৰ যিবিলাক হিৰো আছে, যি হিৰোৰ নাম আমি কোনোদিনে শুনা নাছিলোঁ, যিবিলাকে ভাৰতবৰ্ষক আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰিছে, তেওঁলোকক লাইমলাইটলৈ আনিছে আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰলৈকে তেওঁলোকক সংযোজন কৰিছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতবৰ্ষক উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত এক প্ৰধান ভূমিকা লৈছে। আৰু সেয়াই নহয়, এই মন কী বাত বা মনৰ কথাই আজি ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বৰ ভিতৰতে আদৰণীয় কৰি তুলিছে, আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীকো আদৰণীয় কৰি তুলিছে। সঁচাই আনন্দিত হৈছোঁ আৰু এই মন কী বাত বা মনৰ কথা চলি থাকক আৰু যাতে আমাৰ ৰাইজে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু আমাৰ যিসকল হিৰোইন বা নায়ক নায়িকা যি কাম কৰিছে দেশখনক আগুৱাই নিয়াক, তেওঁলোকক আকৌ লাইমলাইটলৈ লৈ আহক আৰু ভাৰতবৰ্ষক উন্নতিৰ পথত লৈ যোৱাত সহায় কৰক। আজি অনুষ্ঠানলৈ আহি বৰ ভাল লাগিল। মোদী ডাঙৰীয়া, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই যি 100টা এপিছ'ড কৰিলে, প্ৰত্যেকটো এপিছ'ডৰে মই সঁচাকৈ মই অভিভূত হৈছোঁ। সেই সময়ছোৱাত তেখেতে মোলৈ এখন চিঠি লিখিছিলে আৰু সেই চিঠিখনৰ উত্তৰত মই তেখেতলৈ কেইটামান পঠাইছিলোঁ আৰু তেখেতে মোৰ জন্মদিনত এখন মোৰ শুভেচ্ছা পত্ৰ মোলৈ পঠাইছে। মোদী ডাঙৰীয়াই কিছুমান চিন্তা বৰ ভাল চিন্তা কৰে আৰু মানুহৰ ভিতৰে ভিতৰে অন্তৰত সোমাই যায়। সেই সময়ত মই তেখেতলৈ এটা কবিতাও পঠিয়াইছিলোঁ যে তুমি অশোক ৰজাৰ নিচিনা। অশোক ৰজাই যেনেকৈ গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে গৈ মনে মনে গৈ মানুহক খবৰ লৈছিলে, তুমিও তেনেকৈ লৈছা। তেতিয়া মই পদ্মশ্ৰী পাইছিলোঁ। তেখেত মোৰ ওচৰলৈ গৈ মোৰ ওচৰত বহিছিলে, কথা পাতিছিলে। তেতিয়াৰ পৰা মানুহজনৰ প্ৰতি মোৰ সঁচাকৈ বৰ মানে ভাল ভাৱ এটা আছে মানুহজনৰ প্ৰতি। মই কোনো মানে অন্য বিষয়ত কথা ক'বলৈ যোৱা নাই আৰু আজি আটাইকেইটা এপিছ'ড দেখি মোৰ খুব ভাল লাগিছে। আৰু মোলৈ লিখিছিলে তেখেতে যে মই কিবা এটা কৰিব লাগে। 2 অক্টোবৰৰ দিনা মই তেনেকৈ এখন গাড়ীত আমাৰ দূৰদৰ্শনে মোক গাড়ীখন সুবিধা কৰি দিছিলে আৰু সেই দূৰদৰ্শনৰ গাড়ীত উঠাই এটা প্ৰচেছন কৰিছিলোঁ। তাত মহাত্মা গান্ধী সৰু কালটো মই সজাই পেলাই তুলিছিলোঁ আৰু বহুত মহিলাক লৈ পেলাই মই চাফাই কামটো কৰিছিলোঁ আৰু মই নিজে ঝাৰু লৈ পেলাই ৰাস্তাত চাফাই কাম কৰিছিলোঁ। আৰু সেইটোৱে মানে এতিয়াও মোৰ কৰি থাকিব মন যায়। তেনেকুৱা মই কিবা সুবিধা পালে মই এতিয়াও কৰি থাকিম, কিন্তু মানে সুবিধাবোৰ পাব লাগিব আৰু সুবিধাৰ উপযোগ্য মই হয়নে নহয় তেওঁলোকে চিনি পাবও লাগিব। গতিকে আজি মই খুব বেছি ভাল পাইছোঁ, সঁচাই ভাল পাইছোঁ। এনেকুৱা এজন মানুহে যদি এনেকুৱা কামখিনি কৰিছে আৰু আমিও সেই কথা কামখিনি আমি মানুহজনৰ ব্যক্তিগত মানুহজনৰ ৰাজনীতি চাব নালাগে, কাম কৰিব লাগে। মোৰ এতিয়া এইটো বয়সলৈকে 88 বছৰলৈকে মই কামেই কৰি আছোঁ। কাম কৰিব লাগে। কাম কৰিলে যিটো কামৰ পৰা দেশৰ ৰাইজৰ জনতাৰ লাভ হয়। ব্যক্তিগত কাম মানুহে কৰিবই লাগিব, চাকৰি কৰিবই লাগিব, ইনকাম কৰিবই লাগিব, কিন্তু দেশৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে কৰাটো বহুত বাঞ্ছনীয়। আৰু মোদী ডাঙৰীয়াই এটা আমাক ডাঙৰ উপহাৰ দিলে আৰু এটা আদৰ্শ দেখুৱাই থৈ গ'লে আৰু এইটো যাতে আকৌ এতিয়াও আৰম্ভ হৈ আকৌ যাতে চলি থাকে। তথ্য আৰু জনসংযোগে মানুহক সবল কৰে, মানুহক শক্তিশালী কৰে। 2014 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যিটো গণসংযোগ আৰু জনসংযোগৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিল মন কী বাতৰ জৰিয়তে, এইটোৰ জৰিয়তে তেখেতেই কেৱল ভাৰতৰ কোটি কোটি জনসাধাৰণৰ সৈতে সংযোজিত হোৱা নহয়, ভাৰতৰ কোটি কোটি জনসাধাৰণক তেখেতে ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ সংযোজিত কৰিছে মন কী বাতৰ জৰিয়তে। তাৰ জৰিয়তে নতুন নতুন তথ্য পাইছে, নতুন নতুন সংযোগ ঘটিছে, নতুন নতুন সম্পৰ্ক হৈছে, নতুন নতুন আইডিয়া পাইছে আৰু সেইখিনিয়ে সমগ্ৰ দেশখনক, সমগ্ৰ জাতিটোক একে সময়তে শক্তিশালী কৰিছে আৰু একত্ৰিত কৰিছে। আৰু মানুহৰ মনৰ কথা মন কী বাত, সেই মনৰ কথাৰ শক্তিৰে ভাৰতখন শক্তিশালী হৈছে বুলি মই ভাবোঁ। এটা অভিনৱ কাৰ্যসূচী, পৃথিৱীত কেতিয়াও নোহোৱা নপজা এটা কাণ্ড, যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সম্ভৱ কৰি তুলিলে। আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ ৰেডিঅ'ক বাছি ল'লে, আকাশবাণীক বাছি ল'লে, যিটো হ'লগৈ ভাৰতবৰ্ষৰ এতিয়ালৈকে যোৱা 7-8টা দশকত আটাইতকৈ শক্তিশালী মাধ্যম। আৰু তাৰ পৰা কি হৈছে, এই তথ্য বিস্তৃত হৈছে, তথ্য মাল্টিপ্লাই হৈছে আৰু দ্ৰুত গতিত সেই তথ্য চাৰিওফালে মানুহক সংযোগ কৰাৰ এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে। 100 एपिसोड के लिए बहुत बहुत बधाई हो। और हम लोगों का मेरा नाम मन की बात में कैसे है कि हम लोगों का 3 भाई बहन था। 2020 में आपका मेरा भाई बहन और मैं
तीनों खेल इंडिया खेला था तब हम लोगों का नाम मन की बात में आया था और मन की बात सुन के बहुत अच्छा लगता है। मोदी जी की वो आवाज़ अच्छी लगती है कि सबकी देखते हैं, वो सबकी देखते हैं, वही अच्छी लगती है। আমাৰ খেলো ইণ্ডিয়া যি হৈছিলে তাৰে পৰা মন কি বাতত আমাৰ নামখিনি ওলাইছে। মোদীয়ে তেনেকৈ ক'লে যে বোলো একে ঘৰৰে তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ খেলুৱালে, কেনেকৈ পাৰিলে, আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে হাজিৰা কৰে, ময়ো তেনেকৈ সেনেকৈ কিবা এটা কৰোঁ আৰু তেনেকুৱা পাৰ্ট টাইম কাম হওক কিবা হওক তেনেকৈ কৰি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মই আগবঢ়াই নি আছোঁ। আৰু তেনেকৈ নামটো মন কি বাতত অহাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। তেখেতে কৈছিলে কেনেকৈ কি কৰিলে, ইমান কষ্ট কেনেকৈ কৰিলে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কেনেকৈ আগবঢ়ালে, চান্সটো কেনেকৈ পালে, তেনেকৈ কৈছিলে। মইতো আশা বহুতখিনি কৰিব বিচাৰোঁ, চাওঁ কিমান দূৰ আগবাঢ়িব পাৰোঁ। চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জয়ন্তী উপলক্ষে আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মন কি বাত অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে তিনিটা প্ৰতিযোগিতাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে। প্ৰথমটো আছিলে দেশভক্তি গীত লিখা, দ্বিতীয়টো আমাৰ নিচুকনি গীত লিখা আৰু তৃতীয়টো ৰংগোলী। আৰু মই সেই নিচুকনি গীত লিখা প্ৰতিযোগিতাৰ নেশ্যনেল লেভেলত মই দ্বিতীয় স্থান অধিকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। আৰু তাৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মন কি বাত অনুষ্ঠানৰ 98 সংখ্যক খণ্ডত মোৰ নামটো উল্লেখ কৰিছিলে। তাৰ বাবে মই বহুত আনন্দিত। 2019 में 24 नवंबर को मन की बात का जो 59 एपिसोड हुआ था उसमें मेरा नाम प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया था। उसमें मैंने ब्रह्मपुत्र पुष्कर जो कार्यक्रम में आयोजन हुआ था उसके विषय में मैंने उनसे अवगत कराया था। मेरा मुख्य मकसद यह था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और एक संदेश, हम सब एक हैं, इस विषय पर मैं उनका योगदान आयोजित करना चाहता था। तो उन्होंने मेरी बातों को विचार किया और अपने मन की बात में मेरा नाम उल्लेख किया। मुझे बहुत जब ये बात आई, मेरे को पता चला मेरा नाम उन्होंने उल्लेख किया है, मेरे लिए रस्म के लिए बहुत गौरव की बात हुई थी। ब्रह्मपुत्र का नाम उल्लेख करके उन्होंने ब्रह्मपुत्र के विषय में बहुत अच्छे से उन्हें समझाया और जल और जीवन का जो महत्व उन्हें समझाया, उसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी का ये कार्यक्रम है 200 एपिसोड कंप्लीट करे।